Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you guys? Walaikum salam. Yes, 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 Noor, you you are are. audible. Okay. First of all, I'd like to give a brief introduction about myself. My name is Nuruddahar. I am a student of LLB. Currently, I am in my third semester at PUJC. I am also a volunteer at Wakalat Online. So, guys, we all are gathered here today to discuss a very important topic, the art of mooting. So, the question is what exactly the mooting is? Mooting actually refers to the practice of presenting legal arguments in a mock court setting. Now, why is this important for a law student? So, guys, it is very important for all of us because it helps us to develop key skills like speaking confidently, building strong arguments, and most importantly, responding effectively to questions from the judges. So, to explain this topic in detail, we have a very special guest with us today, Mr. Ehsan E. Mustafa. He is a highly skilled mooting trainer and the proud award winner of a national moot court competition. He has participated in 7 national competitions, winning one, becoming the runner up in two, and earning 3 awards for Best Speaker, one for Best Memorial, and another for Best Researcher. Before calling our beloved guest, I want to make an announcement that the attendance form will be sent in the chat box during the session and it is compulsory for all of you to fill it out. So without further delay, I'd like to invite Mr. Hassan E. Mustafa to take the mic and share his knowledge and experience with us. Over to you, sir. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible, Noor? Yes, sir. And am I visible now? I'm so sorry I'm not wearing a legal attire because this is a session which I believed should be given on a very normal and informal scale. So, first off, thank you so much for such a generous explanation of my side and such a generous introduction. Well, my name is Sayyid Hassan Mustafa. I am from Lahore. And as Noor already told you, I've participated in 7 national competitions. I've won 3 time Best Speaker, won a single competition at a national level from Hyderabad. And well, my last competition would be Jessup, and then I'll be retiring. I have retired from the nationals. So basically, thank you so much for Carlot Online for inviting me. And today I would like to elaborate basics of introduction to mooting and everything. My first question here would be: am I clearly audible? And can you guys see me? Yes, Just sir. any one of you, just please tell me. Yes, sir, you're audible. Perfect, perfect. So one thing I need to make clear कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. I don't want you guys to miss out on anything. Second thing is I don't use slides. मुझे इन्होंने पूछा था कि if you are going to use any slides or all, तो I basically don't use slides because जब आप slides का data दे रहे होते हो, then you stick to that data and you are not able to provide anything more than that. So I'll give you guys all I have from my experience. It is not possible to give it all in a single hour, but I'll try to provide as much as I can and try to tell you guys what I have learned from my experiences and from my mooting career so far. Last, there is no such thing as a silly or stupid question. Okay? So if you have any question, please raise your hand and always ask. Even though if I'm in the middle of telling you guys something, I'll see your hand raised and I'll ask you the question. So please ask questions because interactive session hoga. So it would be very nice of you to ask me questions. So it would be better from my side to tell you what you guys want to know. Okay? So without further ado, I'll be explaining some basics of mooting, what mooting actually is. Obviously, within an hour, I cannot tell you how to do your research and how to draft a memorial and how to speak everything regarding that. But a brief introduction and a little detail about how the etiquettes of the work and how moot court helps you out in the further future of your legal career. Yeah, this is my childhood bottle. I use it still. Okay, moving forward. So what basically mooting is, first of all, हमें ये चीज़ समझनी है कि moot court competition का शुरू कहाँ से हुआ था. आप में से काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये जानते होंगे कि आफ्टर जब आप एलएलबी कर लेते हो देयर आर 2 क्लासेस. या तो आप एलएलएम करते हो या फिर आप बारट लॉ करते हो. और बारट लॉ करने के लिए आप यूके जाते हो और फिर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू एनरोल होके आप किसी इन से अपना बारट लॉ कोर्स खत्म करते हो. 4 इन्स हैं जिनमें से एक मिडिल टेम्पल है, इनर टेम्पल है और ग्रेज है और लिंकन्स इन है. ये 4 इन्स जो हैं ये बेसिकली आपको बारट लॉ ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद आप ऑफिशियली बैरिस्टर बन जाते हो. आफ्टर यू डू योर प्यूपिलेज यू आर एक्चुअली देन एन ऑफिशियल बैरिस्टर, बट बारट लॉ करने के बाद यू आर कॉल्ड अ बैरिस्टर.
सो इन द 19th सेंचुरी केसी होते थे, अब वो क्यूसी हैं, ठीक है, केसी होते थे, दे वर यूज्ड टू बी कॉल्ड किंग्स काउंसिल्स। तो किंग्स काउंसिल्स बेसिकली बैरिस्टर्स को ही कहते थे, क्योंकि ये किंग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते थे और ये किंग्स काउंसिल्स भी होते थे। और किंग्स काउंसिल जो होते थे, उन्होंने बारट लॉ की ट्रेनिंग के दौरान एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डेवलप करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने कहा कि हम आपको एक फिक्शनल केस देंगे, दो पार्टीज बनाएंगे, एक पार्टी एक साइड रिप्रेजेंट करेगी, एक पार्टी दूसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी, और उसका जो मजमुआ है उसको हम एक कंपटीशन की सूरत में रखेंगे, नॉट अ कंपटीशन बट अ सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग एक्सरसाइज और अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन योर एवरीडे करियर और एवरीडे लाइफ। एंड दैट इज टुडे कॉल्ड एज अ मूड कोर्ट कंपटीशन। उसके बाद फिर फिलिप सी जेसप आ गया, उसके बाद शॉन पिक्टेट आ गया, उसके बाद आपका हेनरी डुनांट आ गया, काफी इंटरनेशनल स्कोप के आ गए आपके, वो करते करते अब आपके नेशनल लेवल पे भी आ चुके हैं, और फिर रीजनल लेवल पे आ गए, प्रोविंशियल लेवल पे आ गए, यहाँ तक के इंट्रा सिटी भी होते हैं, अब इंट्रा यूनिवर्सिटी भी होते हैं। सो in short, a moot court competition is when a case, a facts are given to you, you study those facts, आप वो facts को पढ़ते हो, उसके ऊपर सारे laws को implicate करते हो, उन laws के ऊपर तैयारी करते हो, and then you present your case after submitting your memorial। आपने एक draft करना होता है memorial, जिसके अंदर आपने अपने वो grounds बताने होते हैं जिनके ऊपर आप बहस करने लगे हो, और वो बताने के बाद then you move forward to a moot court competition which is practical exposure, जहां पे जजेस का पैनल होता है, आप या तो रिस्पोंडेंट होते हो या पिटिशनर एप्लीकेंट होते हो, और आपको ये बताया जाता है कि विच साइड यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम, और फिर जब आप वो चूज करते हो देन यू गो थ्रू अ मूड कोर्ट कंपटीशन। ये हैं बेसिक्स, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको 5 मिनट का रैप अप के अंदर पता चल गया व्हाट अ मूड कोर्ट कंपटीशन इज। एनी क्वेश्चंस अभी तक के लिए? सो आई मूव फॉरवर्ड। यस नूर। सर यहाँ इसमें सिर्फ फिक्शनल केसेस ही होते हैं या फिर रियल केसेस भी होते हैं? That is a very good question. Well, Noor, moot court competitions are basically all about fictional cases, hypothetical cases होंगे, रियल लाइफ केसेस आप नहीं ले सकते। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो रियल लाइफ केसेस को एग्जाम्पल के तौर पे रख के उसके ऊपर फिक्शनल केस बना लेते हैं। द स्टोरी इज सेम बट द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट। आप में से अगर किसी ने कभी कोई मूट कोर्ट कंपटीशन किया होगा तो कभी पाकिस्तान का नाम रख देंगे वो तालिस्तान, कभी पाकिस्तान का नाम रख देंगे मुनारकिस्तान, तो इस तरह के नाम रखेंगे जिसके अंदर आपको पता तो चल जाएगा कि बात क्या हो रही है और किसका रेफरेंस दे रहे हैं, बट दे विल नेवर यूज द डायरेक्ट इम्प्लीफिकेशंस टू अ स्टेट और अ कंट्री और द पीपल ऑफ द कंट्री। क्योंकि आप इमरान खान का नाम अब एक मूड प्रॉब्लम के अंदर या नवाज शरीफ का नाम एक मूड प्रॉब्लम के अंदर नहीं लिख सकते। दैट इज मेनी अदर रीजंस दैट कम अक्रॉस। जी अरी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। सर उनकी रीजंस क्या होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 1 और 2 अगर आप उसमें एक्सप्लेन कर दें काइंडली। अच्छा, रीजंस बिहाइंड, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि रीजंस बिहाइंड क्यों ये यूज नहीं करते पाकिस्तान एंड ऑल। यस सर। हाँ ओके। यार देखो, ये जो कंडीशंस होती है ना, व्हेन यू यूज पाकिस्तान और व्हेन यू यूज अ नेम डायरेक्टली इम्पोजिंग और इम्प्लीफिकेटिंग अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल बॉडी और अ स्टेट, तो उसके अंदर 4-5 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये कि a law student is not eligible to represent any of the parties which exist in real life। कि लॉ स्टूडेंट गलतियां कर सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपकी डिफेमेशन की तरफ चली जाएंगी, आपकी कुछ ऐसी बातें होंगी जो डायरेक्टली स्टेट के खिलाफ हो जाएंगी। और ये जो मूड कोर्ट कंपटीशन इट इज फॉर द लॉयर्स, ठीक है। और लॉयर्स को क्या कहते हैं, ये तो वो लॉर्ड्स का होता है प्रोफेशन, तो यू कैन नॉट मेक सच मिस्टेक्स इन द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपको प्रॉपर वो दिया जाता है ना, सना आई विल बी कमिंग टू योर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी आंसर दिस वन, आई हैव सीन योर हैंड रेज्ड। अच्छा, तो वो जब सिचुएशन होती है ना कि उसके अंदर आपको एक फिक्शनल केस दिया जाता है, तो उसके अंदर जो पार्टीज होती हैं वो रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके अंदर अगर आप गलतियां कोताहियां कर दो तो वो माफ हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडिंग पार्टी एज पर दैट कंडीशन। और काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं विच यू कैन नॉट यूज, क्योंकि एक पार्टी है, जैसे बिलफर्ज आपको कहते हैं कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इमरान खान। इमरान खान हैज नॉट गिवन द कंसेंट टू इवन मेक दिस केस पॉसिबल। तो आप एज पर द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट देखो तो ऐसी बात एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, फिर और बाकी सारे नेचर वाली चीजें आ जाती हैं। सो दैट इज द रीजन मोस्टली व्हाई आई हैव हाइपोथेटिकल केसेस यूज्ड। कमिंग बैक टू सना, योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि फिक्शनल केसेस से ज़्यादा इसको मोर रियलिस्टिक होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक मूड प्रॉब्लम आई थी, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से रिलेटेड थी। तो उसमें जो आपको कॉन्डोन करना होता है उसमें कुछ रियलिस्टिक आपको देने पड़ते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, फॉर्मेलिटीज़ की तरफ जाना पड़ता है।
तो उनको फिर कंडोन करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये फिक्शनल केसेस में ये प्रॉब्लम आती है। तो रियलिस्टिक होंगे तो वो थोड़ा रियलिटी के करीब करीब जाएगा, वो हमारे लिए भी ईजी होगा। Sana, I totally agree with your question here. मतलब the thing is कि it is a good thing कि if you are given a real life case, उस तरह आपको ये पता होगा कि real life example मिली हुई है। But similarly situation इस तरह होती है कि अगर एक केस real life होगा ना, तो रियल लाइफ के अंदर रियल लाइफ पार्टीज भी होंगी। अब रियल लाइफ पार्टीज जब होती हैं तो यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्योंकि ये चीज बहुत नॉर्मल सी समझी जाती है कि यार उसका कंसेंट नहीं लिया, यूनिवर्सिटी बेस्ड तो है, नेशनल लेवल ही तो है, किसी को क्या पता चलेगा। But the thing is, when you are representing a party, that means you are on their behalf. आपके पास उनका power of attorney है. That is why you are representing them. And as your example of the condonation of delay is given, the condonation of delay के ऊपर मैंने एक national moot किया था back in 2023. I guess I'm not sure of it. But उसके अंदर मैंने देखा था कि I agree कि application वाला issue आ जाता है। तो वहां पे जो जज बैठे हुए थे, he told me to improvise. तो आई इम्प्रोवाइज एंड आई मेड माई ओन स्टेटमेंट्स इन, उन्होंने इवन दो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू इम्प्रोवाइज, बट एज द जज गेव मी कंसेंट एंड आई वाज एबल टू थिंक अपॉन माय फीट। उस टाइम मेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा था, इवन दो इतना मोस्टली चलता नहीं है, बट उस टाइम चल रहा था। सो आई वाज एबल टू क्रिएट अ सिचुएशन टू जस्टिफाई द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एट दैट टाइम। सो बेसिकली इट इज ये कि अ फिक्शनल केस इज बेटर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब यहाँ तक कि आप देख लो, एक बार्बर होता है, एक बार्बर को डायरेक्टली किसी कस्टमर के आगे नहीं बैठा देते कि यार कम ऑन कट द हेयर, आप सीख लोगे। वो पहले उसको एक डमी के ऊपर रखते हैं, विग लगाते हैं, उस पे सिखाते हैं, उसके बाद जो शॉप का ओनर है या शॉप के बच्चे हैं उनके बालों पे सही कराते हैं, देन इवेंचुअली ही कम्स ऑन टू कटिंग द हेयर ऑफ द कस्टमर्स। Similarly, it is not a very valid example, but it is enough to make it clear that you can make your decisions and as per your knowledge you can build the case for a fictional case, ठीक है। But when you graduate, उसके बाद आपको पता चलता है कि real life law क्या है और real life representation of a client क्या है। So that is the reason you have to go through fictional or a hypothetical case. I hope it answers your question, right? Yes, sir. Perfect. Moving forward to Noor. Noor, you had a question? यस सर। सर जैसे आपने कहा कि आपने एक बड़ी पर्सनैलिटी का नाम लिया पाकिस्तान में, जो जैसे कि इमरान खान, हम उनकी इजाज़त के बगैर उनका नहीं ले सकते केस कोई भी। तो हम कोई पुराना केस तो ले ही सकते हैं ना, मतलब जो लोग अभी नहीं है, जैसे कोई सिविल केस हो गया, बहुत पुराना केस है, जो वो लोग अभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनका केस तो हम ले सकते हैं, या फिर किसी और कंट्रीज का कोई सिविल केस हो तो उनको देकर तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा नूर, the issue that you have raised ये बहुत अच्छा इशू है, ठीक है। It makes so much sense to me as well, but the thing is कि पहली चीज के किसी के जो वाली वारिस होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करना बंद नहीं करते थे। एंड सिमिलरली आई एम नॉट श्योर ऑफ द सेक्शन, बट इट वाज आई गेस 409, आई एम नॉट श्योर, उसके अंदर डिफेमेशन टू द डेड भी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई इंसान मर चुका है तो भी आप उसकी डिफेमेशन नहीं कर सकते। अब सिमिलरली आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने जो अपने नाना का केस को फॉलो किया था, ऑफ भुट्टो साहब, जिनको अब जाकर रिलीफ मिला थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, तो वो कोई और भी कर सकता था, बट रिप्रेजेंटेटिव भुट्टो फैमिली को होना पड़ा क्योंकि उसकी फैमिली एग्जिस्ट करती थी। अब आपकी सिचुएशन के अंदर आप कह रहे हो कि अगर फैमिली भी एग्जिस्ट नहीं करती बट स्टिल कानून तो एग्जिस्ट करता है ना, और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अलाइव तो होते ही होते हैं, बट देयर आर राइट्स फॉर द डेड एज वेल। तो अब जो डेड है आप उसको भी इस तरह परस्यू नहीं कर सकते जिसके अंदर उसको कोई भी ऐसे कॉजेज आए जो कि उसने आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी तो दी नहीं है और उसके बाद आप उसको फॉलो ऑन कर रहे हो। So that is why it is easier to go with the fictional case. And secondly, the fictional case is made by the authorities, so it is simpler to understand for the authorities, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक बंदा जो मर चुका है, आप उससे उसकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुन सकते, फिर आपके पास सिर्फ वही अवेलेबल है जो फैक्ट्स ऑफ द केस अवेलेबल है, then you could not justify that case properly, and there are some other issues. So I hope I answered your question. Yes sir, thank you. Welcome. Mazahir, you raised your hand, please ask. Sir, what are key skills for moot court competitions? Okay, that is a very good question. I'll be coming back to your question because मुझे लग रहा है कि यासिर जो है उनका ये पिछले पूरे टॉपिक से रिलेटेड। I'll coming back to the key skills. जी Okay. यासिर। Sir, if you go back to your first moot, what would you do differently to improve your performance? Okay, that is actually I'm loving your questions, guys. अच्छा, first off, अबू बकर and मुदस्सिर, मैं आपके questions पे भी आऊँगा. Please keep your hand raised क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ.
बट मज़ाहिर और यासिर के जो क्वेश्चन हैं वो दोनों मिलके एक बहुत अच्छा आंसर बनाते हैं, आई लव टू आंसर दैट. First off, I'll be answering to Yasir's question. If I was able to go back to my first mood, honestly, मेरा जो जिंदगी का पहला मूड था, it was a national, और मैं उसमें runner up था, और मुझे उसमें best speaker award मिला था. So it was a very good experience, but it is a funny story. So I would love to share it with you guys. हुआ ये था कि it was a virtual competition, और जो मेरी एक क्लासमेट होती थी सुंदर नासिर, शी स्टिल विद मी, बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, उन्होंने ही मुझे मूटिंग इंट्रोड्यूस कराई थी, एंड आई वाज इन माय 4th सेमेस्टर आई गेस. तो मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था, एंड शी टोल्ड मी कि देयर इज दिस मूड कंपटीशन एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर इट, दिस एंड दैट. मैंने कहा यार आई एम नॉट गुड इनफ फॉर इट, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल. तो उसने फिर भी जबरदस्ती मेरा नाम भेज दिया, और आई स्वेयर आई डिडंट इवन नो कि हाउ टू टॉक, ठीक है, कि कैसे आपने उसको फॉलो ऑन करना है. तो जैसे ही हमारा फर्स्ट राउंड शुरू होता है तो आई स्टार्टेड गोइंग विद इशू नंबर 1 and 2. उसने मुझे कुछ बातें लिख दी थी कि यू हैव टू स्टार्ट विद मेट प्लीज द कोर्ट, माय नेम इज सैयद हसन मुस्तफा, आई अलोंग विद माय को काउंसिल सुंदर नासिर आर ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर. बेसिक बात तो लिख दी. आगे जो मैंने आर्ग्यू करना था, आई डिड नॉट हैव एनी लॉ विद मी, ठीक है. तो आई केप्ट ऑन गोइंग विद द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स मुझे याद थे, फैक्ट्स मुझे बहुत अच्छी तरह पता थे, और जो मूड प्रॉब्लम थी वो भी 2-2.5 पेज की थी. तो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, बट जैसे यासिर का क्वेश्चन था व्हाट चेंजेस वुड आई वांट टू डू, तो जो फाइनल था ना, फाइनल के अंदर इफ आई हैड अ कपल ऑफ केस लॉज तो आई वुड हैव वॉन, तो वो मैं जीत जाता. तो बेसिकली इफ आई हैड अ कपल ऑफ केस लॉज तो शायद बेहतरी होती, बट वो होता ना कि शायद वाली बात में तो नहीं रहते. तो आगे चलते हैं. बट एज पर योर क्वेश्चन, आई विश आई हैड brought up some precedents with me or some case laws, relevant case laws with me, so I might have won. But it was a very good experience and a very good competition for me. मुझे बड़ा मजा आया था. And as per the question of Mazahir, what was your question? It was about what are the key things that a mooter should have. Yes, sir. My question was, what are the key skills for moot court competition? अच्छा, ऑनेस्टली देखो, हर मूटर का ना अपना स्टाइल होता है, हर मूटर की अपनी स्टेटमेंट होती है, हर किसी का अपना वे ऑफ स्पीकिंग होता है. मैं बहुत पोलाइट होके बोलता हूँ, मेरी आदत है, मैं बहुत अग्रेसिव नहीं होके बोलता, और ये इट इज समथिंग दैट इज एम्बेडेड इनटू यू थ्रू आउट योर लाइफ. अगर बचपन से आप ऊंचा बोल रहे हो तो ऐसे नहीं हो सकता कि इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन यू इवेंचुअली आप खामोश तबीयत हो जाओगे. नहीं, योर स्टाइल एंड योर वे ऑफ स्पीकिंग इट रिमेन सेम. बट द की स्किल्स आर इंग्लिश बोलना सीखो. जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है इंग्लिश. आई वुड नेवर टेल एनीवन टू स्पीक इंग्लिश एंड कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. जरूरी नहीं है, सीख लेना बेहतर है, जिंदगी में काम आ जाएगी. इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. आप किसी भी मुल्क में जाके बात कर सकते हो इजीली. जर्मनी में नहीं कर पाओगे, मुश्किल है, वो अलाउ नहीं करते, बट इन अदर स्टेट्स. तो सिचुएशन ये कि फर्स्ट ऑफ लर्न इंग्लिश. और इंग्लिश सीखने के लिए मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि जाओ यार नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, घुस जाओ किताबों में. नहीं यार, सीजन्स देखो, सबटाइटल ऑन करके देखो, प्लीज डबिंग में मूवीज मत देखो, और इंग्लिश आपको खुद आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. आपस में हल्की फुल्की बातें करो. कुछ बातें ऐसी हैं कि आप आपस में कम्यूट करते हो, उसको यूज कर लो. जैसे आजकल मुझे एक लफ्ज है आर्टिकुलेट, मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा है, आर्टिकुलेट. अब मुझे वो लफ्ज बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं वो लफ्ज यूज कर लेता हूँ. तो जब मैं वो वर्ड यूज करूंगा तो वो मेरे दिमाग के अंदर आ जाएगा. इंग्लिश सीखो, अपनी ड्रेसिंग को मेंटेन करो. whenever you are in a moot court competition, always be very well dressed and very well representative, क्योंकि always remember, पहली चीज जो मूड कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होती है वो आप हो, क्योंकि द जज सीज यू एंड देन हेयर्स यू. आंखों से पहले वो देखेगा, सुनेगा वो कानों से बाद में. तो पहले ही आंखों से उसको इतना पसंद आ जाओ कि उसकी सुनने की चाहत बन जाए, ठीक है. तो ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल, always have a good style of speaking, a good attitude towards the judge, be humble. हमेशा जिंदगी में भी humble रहना चाहिए, और competition में भी always be humble, always show humility. कोई क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन को बड़े आराम इत्मीनान से सुनो, उस क्वेश्चन का फिर आंसर दो, and that is how it goes on. And always be good with research. research मत छोड़ो, research बहुत जरूरी है, आगे की लाइफ में बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है, मूड कोर्ट में तो वैसे ही जरूरी है. So these are some tidbits जो आपके काम आएंगी, और थ्रू आउट लाइफ इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन आपके ये बार आपके काम आती रहेंगी. एंड आई एम नॉट श्योर किसने मुदस्सिर अली एंड अबू बकर वर रिमेनिंग. उसके बाद मैं आपके सईदा सना एंड अरीब के पास आता हूँ. सो मुदस्सिर अली, यू रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपने बोला जितने भी केसेस होते हैं वो फिक्शनल होते हैं,
जी तो हम लॉ में जिससे ही आते हैं एज अ न्यू स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में आगे जो एज हमारे एग्जाम्पल यूज होते हैं वो ओल्ड केसेस, स्पेशली जो इंग्लिश में यूज होते हैं या शरिया में होते हैं। तो जो ओल्ड केसेस की जो मेंशन है हमारे, जैसे एग्जाम्पल आ जाता है आपका इंग्लैंड किया जाता है, यूएसए या दूसरे सिविल लॉज आ जाते हैं, तो वो तो वहाँ मेंशन कर सकते हैं ना। एक तो ये तो ओल्ड केसेस दूसरा, कंपटीशन आप मेंशन करने का पूछ रहे हो? और सर दूसरा सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि हम अपनी जो फिक्शनल केस होता है उसमें जजमेंट देते हैं। अब पाकिस्तान जो जितनी जजमेंट है, आप वहां से कोई पॉइंट्स उठाते हैं कि ये जजमेंट ऐड करके वो वहां पर दे दें, तो केस रिलेटेड होती है ना, तो जजमेंट भी उस हिसाब कैसे होता है वो प्लीज बताएं आप। ओके, आपने दो क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रेलेवेंस, आई गेस कि वो रेलेवेंस ऑफ मूड कोर्ट कंपटीशन विद ओल्ड केसेस था, ऐसे ही है। जब हम रेलेवेंस देखते हैं यार, देखो एक चीज याद रखना कि आपके दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है इन टुगेदर, कि जो जजमेंट्स होती है ना, रिपोर्टेड जजमेंट्स या फिर जो आपके वायलआर पे या सीएमआर पे या पीएलडीज वगैरह के अंदर पाकिस्तान लॉ साइट में ये सब में अवेलेबल होती हैं। जो ये जजमेंट्स हैं ये रिपोर्टेड है, ठीक है, इनका फैसला हो चुका है, केस की प्लीडिंग हो चुकी है, केस का फैसला हो चुका है। तो जब फैसला हो चुका होता है, फैक्ट्स भी वहां पे हैं, लॉज भी वहां पे हैं और जजमेंट भी आ चुकी है, तो आप उनको यूज कर सकते हो अपने केसेस के अंदर। और उसके अंदर से आप रेलेवेंस वाली जो आपने बात पूछी है, अगर कोई जज आपके फेवर में जजमेंट दे रहा है किसी केस के अंदर और वो बहुत पुराना केस है, 1980s 1990s 2000s का केस है, तो आप देखो, अगर वो आपको उसको समझ आता है कि हाँ यार इट मेक सेंस और ये काफी रेलेवेंट बन रहा है मेरे लिए, तो यू कैन ऑलवेज यूज एनी रेलेवेंट पैराग्राफ और एनी रेलेवेंट लाइन फ्रॉम दैट जजमेंट, और आप उसको रिलेट करके अपनी मूड प्रॉब्लम के अंदर भी यूज कर सकते हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। एंड ये अच्छा समझा जाता है ना मूड कोर्ट कंपटीशन। इट इज वेरी अप्रिशिएटेड कि अगर आप किसी प्रेसिडेंट के अंदर से कोई फैक्ट निकाल के लेके आ रहे हो, दैट इज हाउ केस लॉज वर्क। और ऑनेस्टली आपको एक बातें बहुत कम लोग बताएंगे, बट ऑलवेज प्रेफर न्यू जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को प्रेफर करो और 2023, 2024, 2022 की जजमेंट्स को प्रेफर करो, क्योंकि तब नए एक्ट्स और नए ऑर्डिनेंसेस के ऊपर उन पे जजमेंट्स आई होती हैं। तो व्हेनेवर यू गो विद जजमेंट्स, तो नए एक्ट्स और नए ऑर्डिनेंसेस के ऊपर आप रहोगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू फॉलो। आई गेस इट आंसर्स योर क्वेश्चन। कमिंग ऑन विद अबू बकर। जी अबू बकर, प्लीज आस्क क्वेश्चन। जी सर, पूछना ये था कि ये जो फ्रैक्शनल केस होता है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है या मतलब हम ट्रायल से शुरू करते हैं या अपील से शुरू करते हैं? थैंक यू। अच्छा, ओके, गुड क्वेश्चन। अब सिचुएशन होती है, ठीक है, इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन, या तो ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिसाइडेड क्वेश्चन को लेके नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों पार्टीज को इक्वल रखना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अपील पे केस मिलेगा आपको केस हमेशा फ्रेश मिलता है और उसमें आपकी दोनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसा जरूर होता है कि अपील फॉर, जैसे एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अभी किसी ने रेज किया था कि सन्ना और नूर किसी ने किया था, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाली बात थी। उसके अंदर सिचुएशन ये होती है कि यू हैव डिलेड इन प्रोवाइडिंग योर एप्लीकेशन फॉर योर ओन केस, और अब आपने डिले कर दिया एज पर लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5, आपने अपना डिले कर दिया केस फाइलिंग, तो वो डिले की वजह से आपको कॉन्डोनेशन अपनी जस्टिफाई करनी पड़ेगी, बट आपके केस की जजमेंट बिल्कुल नहीं आई होगी और वो आपको उस तरह बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि आपने यार जजमेंट आ गई हुई है, तो वो तो ऑब्वियसली एक साइड वीक हो जाएगी ना। तो इट इज अ फ्रेश केस ऑलवेज। दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर मेकिंग इट अ फिक्शनल केस, कि बिल्कुल फ्रेश केस होगा, तो नो वन नोज द फैक्ट्स, नो वन नोज व्हाट इज द जज गोइंग टू से फॉर इट, तो काफी इजी हो जाता है। कमिंग ऑन विद अरीब्स क्वेश्चन। जी अरीब। सर लाइक यू सेड कि यू आर इन द फोर्थ सेमेस्टर, के जब आप लॉ मूड में फर्स्ट टाइम गए थे, तो एज अ लॉ स्टूडेंट व्हाट द बेस्ट टाइम फॉर इट, मतलब अर्ली स्टार्ट करेंगे? यार देखो, दो किस्म के इसके आंसर्स हैं, ठीक है। पहला आंसर वो है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू पार्टिसिपेट, और दूसरा ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट अ मूड कोर्ट कंपटीशन इज। क्योंकि पार्टिसिपेशन तो फर्स्ट सेमेस्टर से मैं कहूंगा करो, ठीक है, ऑलवेज गो फॉर इट, आपको सीखने को मिलेगा। बट आपके पहले 2 सेमेस्टर जो है ना, बेसिकली पहले 4 सेमेस्टर्स ही वो बीए से रिलेटेड होते हैं, आपको उसके अंदर कानून इतना नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको रिसर्च करने के लिए, आपको सारा कुछ समझने के लिए आपको लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा। सीनियर्स, अच्छे सीनियर्स बड़ी नेमत होते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे, बट अच्छे सीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स आपको मिलने चाहिए। वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे उसके अंदर और एक आपको लाइन बता देंगे, देन इट वुड बी इजियर फॉर यू। तो जाने के लिए तो फर्स्ट सेमेस्टर, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 2 से 3 सेमेस्टर वेट कर लो, बेसिकली अंडरस्टैंड कर लो, और 3rd 4th सेमेस्टर में आप जाना शुरू करो।
और कभी भी खुद को ओवरबर्डन मत करना कि एक टाइम पे 2-3 मूड्स में अप्लाई किया हुआ, जैसे एक खत्म होगा दूसरे में चला जाऊंगा। एक मूड को किया, डेडिकेशन के साथ करो, वो जब खत्म हो फिर अगले के लिए अप्लाई करो। मेरा ये रूल था कि मैं एक साल में 2 से 3 मूड करता था, उससे ज्यादा नहीं करता। दैट इज द रीजन कि मैंने सिर्फ 7 मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स किए हैं। वो ये था कि मैंने कभी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं किया, मैंने इसको फन के लिए किया, सीखने के लिए किया, कभी इसको अपने लिए मुश्किल नहीं बनाया। तो देयर इज नो बेस्ट फेज, व्हेनेवर यू थिंक यू आर रेडी टू गो। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको उसके 10th सेमेस्टर के अंदर, सीनियर था मेरा, उसको मैंने उसके 10th सेमेस्टर के अंदर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन करवाए हैं 2, और उसने उससे पहले कभी नहीं किए थे। तो ही इज वेरी हैप्पी कि ही वाज अ पार्ट ऑफ अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, एंड दैट इज हाउ यू लर्न। तो देयर इज नो एज फॉर लर्निंग एंड नो एज फॉर कम्पीटिंग। जब लगे कि यू कैन जस्टिफाई तो जाओ। और पहला तो होता ही बुरा है ना, पहला तो किसी का अच्छा नहीं होता, तो पहला तो कर दो बुरा। देयर इज नो वरी, सीखने को तो मिलेगा कम से कम। आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कमिंग टू सैयदा सनाज क्वेश्चन। जी सैयदा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें पहले ही मूटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए कि उसको कैसे लर्न करना है। अभी रिसेंटली पार्ट 3 में हमने अपना फर्स्ट मूट जो है वो उसमें अपीयरेंस दी है, तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक था ये। मतलब प्रेसिडेंट्स को फाइंड करना और उनको फिर रेलेवेंसी उनकी ढूंढना, ये थोड़ा मुश्किल काम था। और स्पेशली आपको केस ही वो अपील वाला मिल जाता है जब आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को आपने टैकल करना है, तो सीपीसी में आपको जाना पड़ रहा है, लिमिटेशन एक्ट को पढ़ना पड़ रहा है। तो ये अभी हमारे लिए तो वो सब्जेक्ट्स ही नहीं थे, तो ये थोड़ा मुश्किल था। तो आप बता सकते हैं कि इसको कैसे हम ओवरकम करें, जो हमारे अंदर भी लैकिंग है चीज़। आई एग्री। अच्छा, आपने जो बात रेज की है ना, दैट मेक्स वेरी वेरी मच सेंस। अच्छा, बीच में सॉरी मैंने म्यूट किया था, मेरी अम्मा आई थी, उन्होंने पूछा था क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा दिस इज गोइंग ऑन, वो चली गई हैं। खैर, कमिंग बैक टू द थिंग यू आस्क्ड, बेसिकली व्हेन देयर इज अ मूड कोर्ट कंपटीशन ना, तो द जजेस नो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आई हैव एडजुडिकेटेड, और जब मेरे आगे कोई स्टूडेंट आता था ना, तो आई वाज वेरी श्योर कि इसको कितना आता होगा और कितना नहीं आता होगा। एंड द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज अबाउट कि आपको लॉस तो आते ही नहीं है इन पार्ट 3, ऑब्वियस है नहीं आते होंगे। बट इन अ मूड कॉम्पिटिशन आपको ना, अगर एक अच्छा कोच या अच्छा सीनियर मिल जाए तो आपको ये जरूर गाइड कर देगा कि इसके अंदर से ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपने खेलना होता था। अब कोई भी बच्चा है ना, इफ इज इन लॉ, तो मैं आप लोगों को 3 बुक्स रिकमेंड करूंगा, वो 3 बुक्स खुद बैठ के पढ़ा करो। और वो पढ़ा मतलब आप उसको खोलोगे, आपको मजा आने लग जाएगा। मुझे बहुत मजा आता है कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी पढ़ने का, तो बहुत मजा आता है। कोई एक आर्टिकल या सेक्शन खोल लिया और उस पर नजर घुमा ली। जब आपके पास एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन का फैक्ट्स आते हैं ना, तो उन फैक्ट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होता है कि सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, 184(3) पे खेलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट की। अगर हाई कोर्ट के तो 199, बट सुप्रीम कोर्ट होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, तो वो 8 से 28 तक आपकी जो बातें चल रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, फ्रीडम ऑफ वो असेंबली आ गया, करते करते वो सारे फ्रीडम्स आ गए। ये वो बेसिक्स होते हैं जिनके ऊपर एक मूड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है नेशनल, वो रिलाई करता है। 90% ऑफ द टाइम्स आपने इसी के ऊपर बात करनी होती है, एंड इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। पढ़ने से होगा। And still, if you guys have any question after this session as well, so you can look up for me on my Instagram, and you can also text me on my WhatsApp. आप लोगों के पास I don't know आपको इन लोगों ने कोई चीज मेरी अगर प्रोवाइड की है या नहीं, I'll send in my link. आप लोग मुझे LinkedIn पे, I don't use LinkedIn actually, informal है, but you can always text me on my Instagram and I'll answer you guys. So for any such question, and you can always text me on WhatsApp. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है टू गाइड स्टूडेंट्स ऑन मूटिंग। तो आप लोग मेरे छोटे बहन भाई हो, एंड आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू पीपल। एंड द क्वेश्चन इज इजीली कि हर चीज नहीं आती, हर स्टूडेंट को नहीं आती, इनफैक्ट जजेस को भी नहीं आती। तो यू हैव टू प्रिपेयर, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्रिपेयर 100%। तो इट इज अबाउट द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम योर वे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे सीखने को मिल जाता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Coming on to Yasir. Welcome. Yasir. Sir, how do you deal with a hot bench where multiple judges ask rapid fire questions? Thank you so much for raising the point, Yasir. Actually, I have never seen a very hard bench, honestly, क्योंकि मैं ना काफी humble तरीके से पहले ही उनको ना गाइडलाइन देख लेता हूँ कि क्या। एक चीज मैं अपने हर जूनियर को बताता हूँ, हर स्टूडेंट को बताता हूँ, हर उस बंदे को बताता हूँ जो मेरे से मूटिंग का पूछना आता है, नेवर एवर रीड द मेमोरियल, ऑलवेज रीड द जज।
जज को देखो, आपको जज को देख के आप जज को परख लोगे, यार ये किस नेचर का इंसान है, ये मुझसे क्या पूछने वाला है। अगर वो मुझसे फैक्ट्स पूछेगा तो मैं उसे फैक्ट्स के आंसर दूंगा, वो मुझसे लॉज पूछेगा तो मैं उसे लॉज के आंसर दूंगा। अगर वो फैक्ट्स पूछ रहा है और मुझे फैक्ट्स नहीं आते तो दैट इज वेरी रॉन्ग ऑफ मी। और अगर वो मुझे लॉज पूछ रहा है और मुझे लॉज नहीं आते तो मैं उसे फैक्ट्स में घुमा लूंगा। ठीक है, फैक्ट्स तो आपको हमेशा आने चाहिए, ये तो याद कर लो ना, रट्टे मार लो, रट्टे मत मारो। 21 रूल रखा हुआ है मैंने, आप लोग भी फॉलो करो। एटलीस्ट कंपटीशन से पहले आप 21 दफा तो मूड प्रॉब्लम पढ़ चुके हो, 21 टाइम्स, क्योंकि 6 to 7 टाइम्स के बाद तो आपको एक्चुअली समझ आनी शुरू होती है कि इसमें बात क्या हो रही है। 21 टाइम्स जब हो जाते हैं ना, तब यू आर बेसिकली नोइंग कि अच्छा ओके तो दिस इज अ मूड कोर्ट कंपटीशन और इसमें मैंने ये फैक्ट्स यूज करने हैं। सो मेक द 21 रूल। एंड हार्ड बेंच को यार डील करने का तरीका कोई ऐसे है तो नहीं कोई, जाहिर है जब एक बंदे ने आपको तंग करना है तो फिर उसने तंग करना है, और जजेस होते हैं ऐसे जो आपको तंग करेंगे। फ्यूचर में आपको हाई कोर्ट में भी करेंगे, आपको लोअर कोर्ट में भी करेंगे, रियल लाइफ कोर्ट्स में जो होते हैं वो तब भी करेंगे। But the easier way to deal with them is to mostly answer their question and be humble and polite towards them. जब वो आपको पूछे questions, confuse मत होना, relax रहना, composed रहना, और कोशिश करना कि जितना बेहतर और smoothly आप आंसर कर सकते हो उस तरह आंसर करो। So my suggestion to you would be to be composed and to not get into any depression or anxiety during that pleading. आपको वो pressure में डालेंगे, but you have to cater with the pressure. That is all what a moot court competition is about. I guess that answers your question. Moving on to Mazahir. Please ask a question, Mazahir. सर हम हाल ही में एक मूड कोर्ट कंपटीशन में गए हुए थे, वहाँ पे हमें जो केस ला दिया था केस दिया था, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड लिखा हुआ था, फिर फैक्ट ऑफ द केस। तो बैकग्राउंड और फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा कंट्राडिक्ट कर रहे थे कुछ पॉइंट पे। तो इस तरह की सिचुएशन को एक तो कैसे टैकल कर लें। दूसरा मेरा क्वेश्चन सर इस रिलेटेड ये है कि जो फैक्ट्स बयान किए गए थे वहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ था कि बीवी का डाइवोर्स हो गया है, उसके बाद वो कहाँ रह रही थी इस तरह के कुछ भी नहीं बताया गया था फैक्ट्स में। बाद में जजेस ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बीवी डिवोर्स के बाद कहाँ रह रही, तो उस सिचुएशन में हमें हाइपोथेटिकली कोई जवाब देना होगा या जजेस को ये कहेंगे कि इस हवाले से फैक्ट्स साइलेंट हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल कर लें। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना, दैट इज अ गुड क्वेश्चन मज़ाहिर। मैंने आप लोगों को अभी ना थोड़ी देर पहले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पे मेरे साथ एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था, मैंने अभी शेयर भी किया था, दोबारा करता हूँ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का मूड कोर्ट चल रहा था, इट वाज अ नेशनल, और उसके अंदर ना हुआ ये कि वी हैव टू फाइल अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के पीछे रीज़न उन्होंने लिखा ही नहीं था कि आप इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हो। तो लकीली मैंने ओ लेवल्स के अंदर ना बायो पढ़ी हुई थी, तो मुझे थोड़ी बहुत बायोलॉजी का पता था, एंड आई वाज वेरी श्योर कि जज को तो नहीं पता। अच्छा, तो अब जज ने मेरे से पूछा कि व्हाई आर यू कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग, आपको 65 डेज की कॉन्डोनेशन क्यों चाहिए, वेयर वाज योर क्राइम। तो मेरा पहला जो था वो मज़ाहिर एज एनीवन शुड गो, मैंने कहा योर ऑनर the facts are silent, it is a gray area, so I am unable to answer as per your question because there is nothing given in the facts and I cannot presume. तो फिर मुझे जज ने कहा कि I want you to improvise. अब मुझे जज ने एक रूम दे दिया, ठीक है। पहले मैंने डायरेक्टली कहा कि द फैक्ट्स आर साइलेंट, इट इज अ ग्रे एरिया, आई कैन नॉट आंसर यू। जब वो बात हो गई तो जज ने मुझे कहा नो नो नो, आई वांट यू टू इम्प्रोवाइज एंड गिव मी एन आंसर, व्हिच इज नॉट अलाउड इन अ मूड कोर्ट। ऑनेस्टली इट इज नॉट अलाउड। पर जब जज ने मुझे बोल दिया तो आई कैन नॉट मेक द जज गो अच्छा नहीं मैं तो नहीं कर सकता इम्प्रोवाइज, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। तो इवेंचुअली आई वेंट ऑन विद इम्प्रोवाइजिंग। तो मैंने उनसे कहा कि योर ऑनर, माय क्लाइंट हैड अ पेन इन हिज हार्ट, and that is why when he realized that his left ventricle and right ventricle both were not pumping blood properly, and he had some issues with the walls of his heart, and his atriums were also blocking. That is why he was in the hospital for 1.5 months, and eventually when he went through eventually after 45 days he went undergone bypass surgery, and after that bypass surgery he was on bed rest for 10 days. That is why he is coming after 65 days, and the judge was very happy even though मैंने खुद से स्टोरी बनाई थी, खड़े खड़े खुद से बना रहा था मैं वहां पे, बट चल गई वो उस टाइम पे। द थिंग इज व्हेन द जज गिव्स यू रूम टू प्ले, इफ द जज इज नॉट अलाउइंग यू एंड इफ ही इज नॉट गिविंग यू द provisions of improvising or making your own statements and making your own conditions, then please tell the judge ke it is not available on the facts and the facts are silent, so you can move along with that. I hope it answers your question, Mazahir. Moving on to the question of Saqib. Ji Saqib.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था सर कि जब भी कोई कैंडिडेट बेस्ट स्पीकर का अवार्ड जीतता है वहाँ पे, तो कौन सी स्किल्स होती हैं वहाँ पे जो कि उनको देखते हुए उनको जो है बेस्ट स्पीकर का अवार्ड दिया जाता है? ओके, गुड क्वेश्चन। यार देखो, हर किसी का ना अपना एक सेट होता है। तो whenever I went to a moot court competition, I know it is very wrong of me to say this, पर मैं सोचता था कि मैंने ही जीतना है बेस्ट स्पीकर अवार्ड। हाउ, ये मैं भी नहीं जानता था। तो इवेंचुअली व्हेन आई केम टू रियलाइज हर यूनिवर्सिटी का एक अपना एट्रीब्यूट होता है। जो मार्किंग होती है ना, उन मार्किंग के अंदर जो जजेस होते हैं ना, उनके पास एक पैनल दिया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है उस राउंड का बेस्ट स्पीकर कौन है। तो 4 स्पीकर हुए, 2 एक टीम से, 2 दूसरी टीम से। आउट ऑफ दोज 4 जजेस ने लिखना होता है कि जैसे बिलफर्ज मैं एक राउंड में हूं और उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है, तो उस राउंड का बेस्ट स्पीकर मैं हूं, ठीक है। और 2 प्रीलिम के राउंड्स होते हैं, एक क्वार्टर का राउंड होता है, एक सेमी का राउंड होता है, एक फाइनल का राउंड होता है, टोटल 5 होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो क्वार्टर फाइनल्स तक में से भी बेस्ट स्पीकर ले लेते हैं, कुछ होते हैं जो सेमीफाइनल्स के बाद से लेते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ फाइनल में से ही बेस्ट स्पीकर लेते हैं। जबकि मेरा मानना है कि आपको प्रीलिम्स तक में से भी बेस्ट स्पीकर लेना चाहिए, क्योंकि देयर इज एन अनलकी सिचुएशन के बच्चा प्रीलिम नहीं क्लियर कर पाया बट ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर समवन हु इज एलिजिबल एंड हु इज स्पीकिंग गुड फ्रॉम ओके सर, I hate that guy, but thank you. अच्छा, moving forward, the thing is कि जब आप कर सकते हो फॉलो ऑन उस चीज को, तो आपको प्रीलिम में से भी बच्चे लेने चाहिए, ठीक है। सो ड्यू टू दोज रीजंस आप कह नहीं सकते कि हाउ दे चूज अ बेस्ट स्पीकर, बट ऑनेस्टली आपको पता होता है कि इफ यू आर गोइंग टू विन और नॉट। मैं 3 दफा जीता हूँ आउट ऑफ 7 टाइम्स, और मुझे 4 दफा लग रहा था कि मैं जीतूंगा। वो जो 1 दफा मैं नहीं जीता, उसकी रीजन ये थी कि मैं सेमीफाइनल्स में हार गया था। अगर मैं सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करके फाइनल्स में चला जाता तो मैं शायद जीत जाता, बट वी नेवर नो। तो आपको पता होता है कि हाउ योर परफॉर्मेंस वाज एंड हाउ यू आर गोइंग टू विन द बेस्ट स्पीकर। थोड़ा सा स्पोकन के ऊपर मैं अभी ये सेशन खत्म होने से पहले बात भी कर लूंगा, दैट माइट हेल्प यू साकिब। इज इट ओके? राइट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, प्लेजर इज ऑल माइन। आई एम नॉट श्योर किसने पहले हाथ उठाया था, आई गेस नासिर ने। नासिर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम ये केस लॉस रिसर्च करने लगते हैं तो हर इशू से रिलेटेड बहुत सारे रिलेवेंट केस लॉस मिलते हैं, तो हर इशू के ऊपर कितने केस लॉस लगाने चाहिए सर साथ में? अच्छा, गुड क्वेश्चन सर। आज तक ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने केस लॉस जरूरी हैं। मैं एक कंपटीशन था जिसके अंदर रनर अप था, वो हुआ था कराची में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और मजे की बात यह है कि मैं फाइनल राउंड खेल के हारा था और बेस्ट स्पीकर अवार्ड भी जीता था, और मेरे पास एक भी केस लॉ नहीं था। केस लॉ था ही नहीं, नॉट दैट कि मैं रेफर नहीं कर रहा था, मेरे पास था ही नहीं केस लॉ। तो मजे की बात यह है कि इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर जस्टिफाइंग योर पॉइंट एंड हाउ गुड यू आर जस्टिफाइंग योर इश्यूज। अगर आपको एक इशू मिलता है तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आप पास हर इशू के ऊपर 2 केस लॉस तो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। हर इशू के ऊपर अगर आप ग्राउंड जस्टिफाई कर रहे हो ना, हर इशू के ऊपर आप केस लॉ नहीं रख सकते, बट 2 केस लॉस एक इशू के ऊपर आपके पास होने चाहिए जो प्रॉपरली रिलेट कर रहा हो, और वो भी इन केस अगर जज मांगे तो देना, वरना एक दे देना, दैट इज इनफ। क्योंकि जज को ज्यादा केस लॉस भी अच्छे नहीं लगते, उससे भी आपके पॉइंट्स कम ही होते हैं, क्योंकि आप जज कंफ्यूज नहीं करना, आपने जज को समझाना है। यू हैव टू बेसिकली सेटिस्फाई द जज, और उसके अंदर आपको जज को अगर आप कंफ्यूज करोगे तो दैट वुड बी वेरी रॉन्ग। तो गो विद एक रिकमेंडेशन है, गो विद 2 केस लॉस पर इशू, मोर देन इनफ, इट वुड वर्क परफेक्टली। बट काफी रिलेटेबल होने चाहिए, वो प्रॉपरली बैठे और उसकी जजमेंट देख लेना। अक्सर जजेस को पता होता है कि किसकी जजमेंट क्या है, ठीक है, तो वो आपके अगेंस्ट ही ना चले जाए। तो फेवर में जो हो, ऑलवेज यूज दैट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मुदस्सिर अली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वालेकुम सर। जैसे हमारे साकिब कि जो आपके स्पीकर हो तो कैसे सिलेक्ट होते हैं? ये तो होता है बंदे की अपने बोलने के हिसाब से उसे पता चल जाता है ये मैं, उस हिसाब से वो बेस्ट बनता है। और दूसरा होता है ड्राफ्टिंग। आपको जो मेमोरेबल अवार्ड मिलता है वो उसमें कौन सी चीज होती है जो दूसरों से आप चेंज करती है? क्योंकि लॉज भी सेम है, आपके आर्टिकल्स भी सेम है, कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसमें आर्टिकल सेम है। कौन सी चीज होती है जो ड्राफ्ट में आपको लीगल ड्राफ्ट में चेंज करती है, आपको एज अ चेंज जाहिर करती है, ये बंदा चेंज है,
आपको वो बेस्ट अवार्ड देते हैं? गुड थैंक यू क्वेश्चन मुदस्सिर। काफी ब्रीफ होने की कोशिश करूंगा मैं इसमें, पर ये काफी डिटेल्ड आंसर मांगता है। वैसे तो मेरे पास एक बेस्ट मेमोरियल पड़ा हुआ है, मेरे एक दोस्त का ड्राफ्टेड है वो, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ इन योर ग्रुप व्हेरेवर दिस ग्रुप इज, तो आई विल शेयर दैट विद यू पीपल। सेकेंडली, जो बेस्ट स्पीकर होता है ना, वो तो जस्टिफाई होता है ड्यूरिंग ओरल राउंड्स, जब वो बोल रहा होता है तो जजेस उसका नाम लिख के दे देते हैं। जो बेस्ट मेमोरियल है वो भी जजेस ही अलॉट करते हैं। जजेस के सामने जब मेमोरियल आता है और आप जब प्लीड करते हो और उस मेमो के अंदर हर लॉ प्रॉपरली रिलेट होता है, हर लॉ के प्रेसिडेंट्स अवेलेबल होते हैं, फुटनोट्स लगे होते हैं, आपने हेडर्स बनाए होते हैं ग्राउंड्स के, आपने उसके रेलेवेंट प्रोविजंस मार्क किए होते हैं, उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ एब्रिविएशंस, पावर्स जो है टेबल ऑफ पावर्स, वो सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ब्रीफ समरी ऑफ फैक्ट्स, ब्रीफ समरी ऑफ जजमेंट्स, यहाँ तक कि ब्रीफ समरी ऑफ आपके जो प्लीडिंग है वो भी अवेलेबल होती है, और रेफरेंसेस प्रॉपर दिए होते हैं, और एंड पे प्रेयर प्रॉपरली लगी होती है। तो हर मेमो दूसरे मेमो से मिलता जुलता जरूर होता है, पर एग्जैक्ट कभी नहीं होता, ठीक है? तो कोई ना कोई डिफरेंसेस जरूर आते हैं। सो वही माइनर डिटेल जो होती है वो एक मेमो को दूसरे मेमो से डिफरेंटली जस्टिफाई करती है। मैं एक मेमो एज एन एग्जांपल भेज दूंगा, आप उसको कंपेयर करना, एंड यू वुड रियलाइज कि यार ये थोड़ा बेहतर लग रहा है देख के। दैट इज हाउ अ बेस्ट मेमोरियल इज बोर्न। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मुदस्सिर जी। अरी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Sir, first I have two questions basically here. So my first question is कि जो plaintiff और defendant है वो on the spot वहाँ पे शेड्यूल होते हैं कि कौन plaintiff साइड होगा और कौन defendant होगा, और अगर on the spot होते हैं तो फिर मतलब how it is to handle the situation, मतलब आप एक और माइंडसेट के साथ हो और वहाँ पे आपको अगर दूसरे माइंडसेट के करना पड़े केस रिप्रेजेंट, मतलब how it is. Okay. So, Areeb, the question is very simple to answer. जो होता है ना प्लेंटिफ या डिफेंडेंट साइड, वो आपको प्रिलिमिनरी राउंड से तो एक दिन पहले बता देते हैं, ठीक है? बट ऑनेस्टली आपको दो साइड्स प्रिपेयर इतनी रखनी पड़ेगी कि अगर वो आपको ऑन द स्पॉट भी बता दें तो आपकी वो प्रिपेयर्ड हो, और फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के ना पहले पहले मुझे भी बड़ा, मैंने कहा यार अगर मैं प्लेंटिफ तैयार करके जा रहा हूँ, आगे डिफेंडेंट आ गया तो मैं क्या करूंगा? तो इस चीज से ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज असल चीज वो है जो आपने ऑन द स्पॉट बनानी है, ठीक है? ऑन द स्पॉट आपने जो प्लीड करना है, असल गेम उसी की ही है। तो बेसिकली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ, बट आपको प्रीलिमिनरी राउंड से पहले बता देते हैं कि आप अगर डिफेंडेंट हो या प्लेंटिफ हो, और अगर आप पहले में प्लेंटिफ हो तो आप दूसरे में डिफेंडेंट हो गए, और अगर पहले में डिफेंडेंट हो तो दूसरे में प्लेंटिफ हो गए, ये तो कंपलसरी है। तो प्रीलिम राउंड के बाद फिर टॉस पे आ जाता है, क्वार्टर फाइनल का टॉस होता है, जो टीम टॉस जीतती है वो अपनी मर्जी से साइड लेती है। तो आपको एटलीस्ट भी आधे से एक घंटे का जो टाइम है वो मिल जाता है टू चूज योर साइड्स अकॉर्डिंगली। तो इट इज इजी, एक दफा फ्लो बन जाए तो बंदा समझ जाता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। मौजमा, यू रेज्ड योर हैंड। आपकी आवाज नहीं आ रही मौजमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मौजमा प्लीज जस्ट अ सेकंड, अजान हो रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अजान जैसी खत्म होती है विल स्टार्ट। Sir, I was asking that I have never attended moot, so I have no idea that how we can find case laws relevant to the point, like how we can search on Google or Pakistani law site about the case laws. Kindly guide me. Okay, Mozma, I understand your question. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ, अगर आपने मूड कोर्ट अटेंड नहीं किया तो इट डज नॉट मैटर एट ऑल। या तो इंट्रा में कर लें या फिर आप नेशनल में भी अप्लाई कर लें। इनफैक्ट अगर कोई मूड कोर्ट कंपटीशन कहीं भी हो रहा है, यहाँ तक कि किसी भी आपके करीबी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, तो आप एज एन ऑब्जर्वर जा सकते हैं। मैं पर्सनली कभी जिंदगी में नहीं गया था, वैसे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, बट वो बहुत मतलब डरावने से लगते हैं। एक्चुअली इतना मुश्किल होता नहीं है। सेकेंडली, जब बात आती है ना केस लॉज की, सबसे पहले तो आपको अपने फैक्ट्स पढ़ने होते हैं। व्हेन द फैक्ट्स आर ऑन द बैक ऑफ योर हेड, आपको प्रॉपरली पता है कि फैक्ट्स क्या हैं, आप समझ जाते हो उस पूरी चीज को। तो उसके बाद जो केस लॉज होते हैं वो आपको रेलेवेंट ढूंढने के लिए पाकिस्तान लॉ साइट, PLDs, YLRs, SCMRs, ये जितने भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू होता है, जो PLDs, पाकिस्तान लॉ डायरेक्टरीज इन जनरल्स इन ऑल एवरीथिंग, आप वो खोल के उसके अंदर से ढूंढ सकते हो। जो पाकिस्तान लॉ साइट है वो बहुत ईजी है, वो काफी एक्सपेंसिव होती है, आई गेस इट इज 50,000 पर ईयर नाउ, पर यूनिवर्सिटीज के पास वो होती है। तो यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी या फिर लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी वो।
उसके लिए एक प्रॉपर क्लास हमें और रखनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह पाकिस्तान लॉ साइट यूज करते हैं. इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, पर आप उसके ऊपर जाके उसको यूज करोगे ना, जैसे फेसबुक वगैरह बंदा करता है यूज, तो आप यूज टू हो जाओगे उसके. फर्स्ट ऑफ उसके ऊपर लिखा होता है कि जो आपने लॉ सर्च करना है उस लॉ को सर्च करें, या कोई रेलेवेंट वर्ड है जो जैसे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अंदर कॉन्डोनेशन ही अगर आप लिखोगे तो आपको उसके ही काफी ज्यादा केसेस मिल जाएंगे. जुरिस्डिक्शन मैटर है तो जुरिस्डिक्शन लिखोगे तो आपको जुरिस्डिक्शन से रेलेवेंट मैटर्स मिल जाएंगे. या फिर उसके अंदर आपको वहां पे ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जाओगे तो उसके अंदर जाके जब आप देखोगे तो सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे. फिर आप आर्टिकल पे जाओगे तो उस आर्टिकल से रेलेवेंट आपको केस लॉज मिल जाएंगे. हेडर से मत पढ़ना. We need yes, obviously I would love to provide a session for this the how to use Pakistan law site. I am not available till 5th of the January. 6th या 7th January को follow on अगर आप लोग मुझे reach करोगे, या I will give you someone who is better than me. ठीक है, तो someone who can elaborate much more better. ठीक है, तो I'll make sure you guys get to know most of it. And secondly, it is Kiran, can you please mute your... Thank you, Kiran. Okay. So, Muazzama, I hope that answers your question. And परेशान होने की बात नहीं है. Moot court competition is just a basic competition. ज्यादा से ज्यादा इंसान हार जाता है. बेइज्जती किसी की नहीं होती. सब स्टूडेंट्स हैं उधर. कोई आपका सीनियर है, कोई आपका जूनियर है. सो इट इज अबाउट टाइम. मैं बहुत दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने सोचा था ये तो मैं जीत के आऊंगा, और मैं प्रीलिमिनरी राउंड में, मैं जिंदगी में एक दफा प्रीलिम से बाहर हुआ था, एंड इट वाज इन पेशावर एडवर्ड्स लॉ मूट कोर्ट कंपटीशन. और उसके अंदर मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, बट मेरे आगे जजेस अच्छे नहीं आए, उन्होंने मुझे मार्क्स भी अच्छे नहीं दिए, एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट. मैं प्रीलिम से ही बाहर हो गया, और मेरी जिंदगी का बहुत बहुत ज्यादा एक था बुरा टेन्योर था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी अमंग्स टॉप 4 टीम्स, पर मेरा नाम टॉप 8 पे भी नहीं आया, और मैं टॉप 20 टीम्स में से बाहर हो गया प्रीलिम में से. तो इट हैपेंस, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू लर्न. और कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऑलवेज पार्टिसिपेट एंड इवेंचुअली पीपल लर्न. और कोई गाइडेंस चाहिए हो तो ऑलवेज आस्क योर सीनियर्स. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल, एवरी लॉ स्टूडेंट. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू वांट टू. ठीक है, इफ आई एम बिजी तो मोस्टली आई एम बिजी प्लेइंग क्रिकेट. उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा, आई प्रॉमिस. ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, Muazzama, right? Thank you, sir. Yes, thank you so much. Pleasure is all mine. There was a question from Areeb या Yasser, I'm not sure, तो जो भी पहले अनम्यूट करके पूछ ले. Yasser, please ask. Sir, what part of mooting do you think beginners tend to overcomplicate? That is a very good question. Thank you so much for asking this. Similarly, as per Muazzama, काफी अच्छा relevance भी दे सकता हूँ, because Muazzama hasn't gone to any moot court competition. Many of you haven't seen any competition. हम लोग डर जाते हैं, ठीक है, हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं, यार क्या होगा वहां पे. तो उस क्या होगा का जवाब सिर्फ ये है कि जाके देख लो, पार्टिसिपेट करो. आप कभी भी हारने से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता. आई स्वेयर आई हैव सीन समवन जिसको ड्यूरिंग मूट कोर्ट कंपटीशन वो बेहोश हो गया था. क्यों? क्योंकि वो डर गया था. डर के क्या हासिल होगा आपको? तो यू हैव टू बी सो विलिंगली स्ट्रांग. ऑलवेज पार्टिसिपेट, और डरो मत. आप डरोगे नहीं तो पहले कंपटीशन में ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो चाइल्ड्स प्ले है. और इतना मजा आता है, मुझे इतना दुख है कि मैं अब फाइनली ग्रेजुएट हो रहा हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम ग्रेजुएटिंग, बट मैं मूट कॉम्पिटिशंस नहीं कर पाऊंगा. तो मेरे लॉ की जिंदगी का पूरे टेन्योर का सबसे बड़ा जो एक मिसिंग फैक्टर है, दैट वुड बी मूटिंग. तो इसको जितना जल्दी कर सकते हो करो यार. यू गाइस वुड लव इट. और मूटिंग कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है. लॉ की कम्युनिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, काफी पॉइजनस होती है, काफी वो होते हैं ना, स्नेक्स आर देयर. बट मूटिंग इज गुड. मूटिंग की कम्युनिटी बहुत अच्छी है. अलग अलग शहरों के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे आपको, और यू वुड लर्न. और लर्निंग का जो फेज है वो तो खत्म नहीं होता. तो इट इज गुड टू गो फॉर. एंड कमिंग ऑन टू Areeb's question, please Areeb, ask your question. Sir, this question is a bit irrelevant to the topic. No problem. But sir, any magazines recommendation for a law student? Cause you said when you have the room to play, then play. So what's for it? I'm not sure of the maxim, but honestly मैं maxim जो है ना, मैं उसको captions के लिए सिर्फ याद रखता हूँ. तो there is nemo ipsum accusare और ubi jacibi remedium और sign damnum injuria sign damnum dine injuria. There are maxims. तो they follow your cases as per your cases.
तो मैक्सिम्स मोस्टली इक्विटी लॉज में यूज होते हैं. व्हेन यू कम इन योर 4th year you'll come to know about it. सर मैगजीन जी अरीब, मैगजीन सर. magazines, okay, sorry, I confused it with maxims. Acha, magazines are I haven't read any magazine, honestly. I'm not a good reader, but you can follow some law pages on Instagram and YouTube. अच्छा, YouTube और Instagram सिर्फ रील्स के लिए नहीं है, ठीक है. You can always go for I'll give some links of some famous lawyers, जैसे कि MMJ लीगल हैं, और उसके अलावा लतीफ़ खान खोसा साहब के बेटे हैं बलख खान खोसा, जैन अली कुरैशी हैं, फेसबुक पे अवेलेबल होंगे, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, साइबर क्राइम से काफ़ी ज़्यादा वो रिलेटेबल बातें बताते हैं. और उसके अलावा देयर आर मेनी अदर लॉयर्स, मेनी अदर एसोसिएशंस जिनको आप फॉलो कर सकते हो. आर्टिकल्स पढ़ा करो, आर्टिकल्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. इंडियन लॉ के आर्टिकल्स पढ़ा करो, इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, वो एक्चुअली बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं. और ये इंडिया पाकिस्तान वाली जंग छोड़ दो, उनको पढ़ो, एंड यू वुड कम टू नो सो मच अबाउट देम. और अभी जैसे आई रियली वांटेड टू होस्ट अ डिबेट, उस पर भी एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह. आई एम लविंग दिस विद यू पीपल. मैं इतना लंबा सेशन चलाता नहीं, मैं थक जाता हूँ, बट आई एम एंजॉयिंग द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम योर साइड. लेडी जस्टिस जो है इंडिया ने, वो चेंज कर दी इन द सुप्रीम कोर्ट, सो यू मस्ट हैव समथिंग, अ लिटिल डिबेट और आर्गुमेंट अबाउट दैट टू. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. जी नूर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैंने लिंक भेज दिए, आप काइंडली वहां पे ज्वाइन कर लें सर. ओके, परफेक्ट. चैट बॉक्स में भेज दिया मैं. अब मैं दूसरा ज्वाइन करता हूँ. ओके, बाय अरीब, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस सर, थैंक यू. Perfect. सर आई हैड अ क्वेश्चन. Yes, please ask. सर आपने बताया कि फिक्शनल केसेस बनाते हैं, तो फिक्शनल केसेस जैसे बना रहे हैं, तो फिर इनमें एविडेंस कैसे क्रिएट करते हैं? और जो क्रिएट करते हैं, अगर कोई एक न्यूट्रल पार्टी अगर एविडेंस वो फिक्शनल केस बना रही है, जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी में कर ले, तो हमारे एचओडी वगैरह वो अगर फिक्शनल केस भी बना के हमें दे रहे हैं, तो हमें एविडेंस किस हद तक कैसे बनाने देंगे? मतलब क्या कैसे एविडेंस क्रिएट हो सकता है? Okay, I understand your query here. अच्छा, इट इज अबाउट एविडेंसेस. जो है ना, एविडेंस उस तरह नहीं दिए जाते हैं, हमें कंडीशंस दी जाती हैं. हमें बताया जाता है कि इस केस में ये हुआ. एविडेंस और किसी पार्टी का कोई बयान जो है, जैसे कहते हैं कि एग्जामिनेशन इसके अंदर नहीं होगी, वो मोस्टली क्रिमिनल केसेस के अंदर होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल या सिविल नेचर के होते हैं. सो एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते इस केस के अंदर, सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं. उन सिचुएशंस को आपने एविडेंसेस के तौर पे क्रिएट करना होता है. और इट इज नॉट अबाउट एविडेंसेस, मोस्टली इट इज अबाउट द फैक्ट्स. के कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो झूठ नहीं बोलते, और जब उन फैक्ट्स को आप झूठ नहीं बोल रहे, तो आप उनको किस तरीके से डील करते हो, दैट इज द आर्ट ऑफ mooting, दैट इज हाउ यू डील विद इट. और एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. और फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट्स की बिना के ऊपर ही आपने देखना था, क्योंकि फैक्ट्स अनचेंज्ड हैं, वो दोनों पार्टीज के लिए सेम है, उसके अंदर आप खुद से कुछ नहीं बना सकते. जो लिखा है वही हुआ है, और उसको अपनी जरूरत के मुताबिक आपने ढालना है, वो आपकी आर्ट ऑफ mooting है. सो दिस इज हाउ mooting वर्क्स. तो एविडेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट, बट facts do, and you have to deal the facts as per your evidences. So can you please differentiate between, sorry, I missed the question, wait a second, there was a question somewhere. So can you please differentiate between moot court and mock trials? Yes, I can. काफी छोटा सा आंसर है इसका, इतना लंबा आंसर नहीं है. Then I'll be coming to Saqib Nazir's question. moot competition के अंदर ये होता है, इसके अंदर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन वगैरह भी हैं. ये सारे 3-4 अलग अलग जॉनरास हैं, अलग अलग स्टाइल्स हैं. बेसिक ट्रेनिंग फॉर अ लॉयर इन द रियल वर्ल्ड होती हैं. मूटिंग के अंदर आपको फैक्ट शीट देते हैं, और उसके अंदर आपने उन फैक्ट्स के अंदर से केस बिल्ड करना होता है. और जब आप फैक्ट्स के अंदर से केस बिल्ड कर लेते हो, तो फिर आपने उस पर बहस करनी होती है. इसके अंदर कोई गवाह नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, और ये मोस्टली सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होंगे. जो मॉक ट्रायल होता है, उसके अंदर आपको एक बैक स्टोरी मिल जाती है, और आपको लोगों के बयान मिलते हैं, और वो लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. उन लोगों को डायलॉग्स सिखा दिए होते हैं, और आप उन लोगों से क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ ये सारा कुछ कर सकते हो. और वो लोग उस मॉक ट्रायल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उनसे आपने बातें निकलवानी होती हैं. तो मूट और मॉक में ये फर्क है. आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन जो है, और नेगोशिएशन जो कि विज मूट के अंदर मोस्टली होता है, उसके अंदर ये होता है कि दोनों पार्टीज को कंडीशन दे देते हैं, दो पार्टीज को,
और फिर उन दोनों पार्टीज का काम ये होता है कि उन दोनों ने आपस में बात करके अपने क्लाइंट के लिए जो बेहतर सोल्यूशन है वो निकालना होता है. तो these are different type of mooting, mock trials, and negotiation, arbitration, and conciliation, etc. So they exist, and this is how they work. Everyone has their own style and standards. I mostly prefer a mooting because इसके अंदर आपको किसी के थ्रू नहीं जाना. It is all about the art of you speaking and art of you presenting your case. And I love mock trials too, क्योंकि mock trials on the go होते हैं, बड़ा मजा आता है वो करने का. I hope that answers the question. Saqib, your question, please. सर फॉर इंस्टेंस जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो मूड कोर्ट कंपटीशन करना चाहते हैं, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे? अगर करेंगे तो वो कौन कौन सी स्किल से हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनको फोर्स करेंगे कि उनके पास होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो अच्छे तरीके से मूड्स कर सकें और बेस्ट स्पीकर या बेस्ट रिसर्चर का वो अवार्ड ले सकें? अच्छा साकिब, बिफोर यू फिनिश योर क्वेश्चन, लेट मी आस्क कि आप चाह रहे हो कि वो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में जाके जीतें या फिर सीखें? फिर मैं सर elaborate करूंगा. इनिशियल स्टेज तो सीखना ही होती है, क्योंकि वो जब Exactly. पार्टिसिपेट करेंगे तो इनिशियल डेज में. Now you have answered the question. ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना, I have never in my life seen someone from the first or second semester winning a competition, a national one. ठीक है, इंट्रा हो सकता है जीत जाए, रीजनल हो सकता है, प्रोविंशियल हो सकता है, नेशनल बहुत मुश्किल होता है. मुश्किल कंपटीशन नहीं होता, मुश्किल वहां पे कॉम्पिटेंस होती है. जो बाकी हैं जाहिर है वो ज्यादा कवानीन जानते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें आ जाती है रेलेवेंसी. बट फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को भी मैं रिकमेंड जरूर करूंगा टू गो फॉर अ मूड कंपटीशन, बिकॉज देन यू गेट द एक्सपोजर. बाय द टाइम यू आर इन योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, अब आपको पता है कि मूड कोर्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है. अब आपके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, अब आप रियल लाइफ में उतर रहे हो. ठीक है, अब आप प्रॉपरली जाके देख रहे हो कि अब क्या करना है, अब असलियत क्या है. And that is when the real games begins. So always go for mooting in your first or second semester. I always appreciate and always acknowledge the students who go for mooting in their first or second semester. थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च सीखनी पड़ेगी, और हार का हाजमा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार जाते हो उसके बाद ही असल आपकी जीत शुरू होती है. बिकॉज यू नेवर विन अंटिल यू अचीव योर फेलियर. तो यू हैव टू अचीव फेलियर बिफोर विनिंग. दैट इज as early as possible, as good as possible. So go for it, and always go for it as soon as you can. I hope it answers your question. Coming on to the question by Yasir Yaqub Khan. Ji Yasir. Sir, was there ever a judge's question or critique that completely changed your perspective on advocacy? That is a very compromising question, I must say. So basically, there are situations where perception on advocacy never changes, because you know what is going on and what will be done. But obviously there are situations and questions जिसके अंदर आपको mostly मुझे जो questions जो मुझे खुद से challenging लगते हैं वो ये होते हैं कि what change my perception is, there are situations I've seen lawyers, they do not prepare in moot court competitions and in real life as well. अब दोनों situations के अंदर I have seen lawyers who do not prepare. When a lawyer is not preparing, that means they are not a good lawyer. And I don't like कोई इंसान 5 साल दे रहा है अपनी जिंदगी के एक फील्ड को और प्रिपेयर नहीं कर रहा. तो there is the thing कि when a lawyer is not preparing enough and someone is not prepared enough to answer the question of a judge or a critique, that means you have not justified your own self, and you have not justified those 5 years and all the savings your parents had to put in this law degree. So that is what my perception is. My perception only changes where it is about you not being fulfilling your own side of the case, or you not fulfilling your own investment on this entire law field. So you have to justify your own self at times, and you have to be prepared enough. Whatever comes in your way, be prepared for it, study for it, get the knowledge from anywhere and anyone possible. So I would say be prepared for anything. Yes, Noor, please ask your question. सर आई हैव नोटेड दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मूड कॉम्पिटिशन्स में या इस तरह की डिबेटिंग में हिस्सा नहीं ले पाते. वो 5 साल में LLB कर लेते हैं, चाहे आगे LLM भी कर लें, लेकिन वो मूड्स वगैरह पे हिस्सा नहीं ले पाते. तो क्या वो आगे एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा बैरिस्टर नहीं बन सकते? नहीं, नॉट एट ऑल. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. आई हैव सीन पीपल जिनको मूटिंग का मतलब भी नहीं पता, वो बहुत अच्छे वकील हैं,
बट इसका ये मतलब नहीं है, देखो मैं एक ना आपको एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड. Okay, students, we will only have a few other questions. Then we will leave Mr. Mustafa. I am so sorry. I am so It's sorry. Actually, मैंने okay. 7 बजे का टाइम किया था और मेरे भाई आ गए थे, वो कह रहे थे कि यार Okay. we have to go. So I coming was, back, what I was what just was I announcing on? that we will have only few questions. Then we will conclude this session. It is completely fine. I am very sorry. I don't have enough time to provide you guys because No, I'm no. enjoying all the questions and I would love to tell you everything. What was I answering? मैं भूल गया मैं क्या बात बता रहा था. I was telling you guys about Noor. Your question was? Sir, I जी was Noor. asking कुछ बच्चे नहीं Yes. participate Now I कर remember your सकते. question. Okay. So ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप के पर्सनली आप मूटिंग नहीं करते या मॉक ट्रायल्स नहीं करते या डिबेटिंग नहीं करते तो आप अच्छे वकील नहीं हो. बट the thing is कि I'll give you an example of cricket because I love cricket. You guys might have known by this time. There are players जो अंडर 19 नहीं खेलते, अंडर 13 नहीं खेलते, अंडर 16 नहीं खेलते, बस अच्छा खेलते हैं और टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों के पास टैलेंट नहीं था. इसका ये मतलब है कि वो जूनियर्स नहीं खेल के आए तो वो अच्छे वकील तो बन जाते हैं पर उन्होंने कभी मूटिंग नहीं की होती. सिमिलरली क्रिकेटर्स जो अंडर 13 खेले, अंडर 16 खेले, अंडर 19 खेले एंड देन दे कम इनटू द नेशनल टीम. इसका ये मतलब है कि दे नो द बेसिक्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड नाउ इन कंपैरिजन विद लॉ फील्ड उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मूटिंग नहीं करते, डिबेटिंग नहीं करते, आर्गुमेंट्स नहीं करते. दे टर्न आउट टू बी फेयर इनफ लॉयर्स, काफी अच्छे वकील बन जाते हैं एट सम टाइम. बट mooting does not justify your law career, but it does give you a polish. हर हीरे को तराशने की जरूरत होती है. कुछ हीरे इस दुनिया में जाके तराशे जाते हैं इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल लाइफ, कुछ अपने आप को तरशवा लेते हैं इंस्टीट्यूशनल लाइफ के अंदर थ्रू मूटिंग एंड ऑल. हीरे तुम सारे ही हो, बस तराशने की जरूरत है. वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप खुद को कैसे तराशते हो. तो इट इज अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड ऑल. प्रैक्टिकल लाइफ में जाके भी बहुत सीखना है, बहुत ज्यादा सीखना ही वहां पे है. इंस्टीट्यूशनल लाइफ इज वेरी सिंपलर एंड वेरी इजी, तो टेक इट इजी इन दैट वे. आई होप आंसर्स योर क्वेश्चन. इट इज बेसिकली फॉर योर ओन स्किल्स एंड ऑल, डेवलपमेंट एंड ऑल. Yes, sir. यस नासिर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मूट कोर्ट कंपटीशन में आर्गुमेंटर करता है या मेमोरेंडम का भी कुछ? नासिर बेसिकली मैटर तो करता है. 10 मार्क्स होते हैं आपके 100 में से मेमोरियल के, बट ऑनेस्टली मेमोरियल अच्छा होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए. पर स्पोकन का बहुत ज्यादा फैक्टर होता है. तो अगर आपका स्पोकन बहुत अच्छा है, मेमोरियल बस ओकेश सही है तो भी आप जीत जाओगे. बेस्ट मेमोरियल नहीं जीतोगे पर बेस्ट स्पीकर भी जीत जाओगे और कॉम्पिटिशन भी जीत जाओगे. तो स्पोकन का एट्रीब्यूट ज्यादा होता है. दोनों का इक्वल होता है बट स्पोकन का ज्यादा होता है. एनी मोर क्वेश्चंस? यस अना. सर नेशनल नोट्स में जो है वो आपने अभी बताया कि 10 मार्क्स होते हैं कि आप मेमोरियल राइटिंग के और स्पीकिंग स्टाइल्स, इनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं? किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, किसको कितने मार्क्स मिलेंगे? ओके. हर कंपटीशन के अलग स्टाइल्स होते हैं. मैं ऐसे कंपटीशन में भी गया हूँ जहाँ पे आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं. ऐसे में भी गया हूँ जिसको मैं एजुकेट कर रहा था, पीयू के अंदर था, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के अंदर. मैं एक इंट्रा कर रहा था जज, तो उसमें आउट ऑफ 50 मार्क्स थे. और एक कंपटीशन ऐसा भी था जिसके अंदर मैंने देखा कि आउट ऑफ 4 मार्क्स थे. तो मार्किंग है वो इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 50. और अगर हम आउट ऑफ 50 देखें तो वो फिर 10 कंडीशंस रख देता है जिसके अंदर 10 नंबर आपके वो होते हैं यूनिफॉर्म एंड ऑल के, लीगल अटायर के, 10 नंबर आपके स्पोकन स्किल्स के होते हैं, 10 नंबर आपकी रेलेवेंसी ऑफ लॉ विद फैक्ट्स के होते हैं, 10 नंबर आपके प्रेसिडेंट्स के होते हैं और 10 नंबर आपके कोर्ट मैनर्स और कोर्ट एथिक्स के होते हैं. Out of those 10 marks, you have to give the marks to the students, which eventually calculate into making a normal final score. तो उसके बाद फिर उसके behalf पे आप लोगों की judgments होती हैं. सेमीफाइनल्स और फाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मार्किंग नहीं होती. उसके अंदर बेसिकली कुछ मार्किंग करते हैं, मोस्टली ये बता देते हैं कि दिस टीम हैज वॉन फ्रॉम दैट टीम, क्योंकि मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती. फिर सिर्फ एक ने जीतना एक हारना है, तो वो जस्ट बता देते हैं अपॉन देयर ओन डिसीजन. तो उस तरह पता चल जाता है. ओके सर, थैंक यू. Perfect. Any other question? Shoot. जल्दी जल्दी पूछ लो फिर मैं चला जाऊंगा. I hope there are no other questions. So thank you so much for having me, people.
Yes, there is a question. Wait a minute. Tina, sir. Okay. ठीक है. I hope there is another question. Thank you so much for having me, people, and it was an amazing interactive session with you. I learned a lot, and I hope you guys learned a little from me. And you can always have me back whenever you want. I'll always be available to provide whatever I have. Thank you so much for inviting me, Daniel. It was truly an honor, and the students here are impeccable and amazing. And I hope to see you guys in a moot court competition someday. I hope that I educate you guys someday. So I know कि किसी को मैंने कुछ तो सिखाया. जी, please wrap it up. Thank you so much. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Welcome. Thank you so much. Allah Hafiz.